Very good morning, my dear students. As we were going through chapter number 9, fundamental rights, fundamental duties, and directive policies. So let us move towards the second part of the chapter, which goes like this: right to freedom. The Constitution of India provides the citizens of India. Over here, the spelling of citizen is wrong. Spelling of citizen is C-I-T-I-Z-E-N, citizen, Nagrik. You have heard about the netizens right now, that the meaning of netizen is the people, those who reside on internet. So these are known as netizens. So as well as we lived in a city or any other place or in a country, so it is known as citizens. A common name for people, those who reside in a country, is known as citizens. सिटीजन्स, डुअल सिटीजनशिप के बारे में भी आपने सुना होगा. अब अबॉलिशमेंट ऑफ सिटीजनशिप भी सुना होगा. तो ये सब चीज़ें हैं. सिटीजन्स ऑफ इंडिया, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम which are under. Number 1, freedom of speech and expression. Number 1 is freedom of speech and expression. That means that we have all the rights to choose our speech. You can speak in either language, you can study, you can learn, as well as freedom of expression. Freedom of expression is actually means that whatever we want to emote through our expressions, if we want to say or raise a question to the society in a particular manner, right manner, which is not unsuitable for the society, we can raise that. So that is known as freedom of expression, FOE, short form FOE. और आप कुछ ऐसी बात भी कह सकते हो, किसी की आलोचना भी कर सकते हैं हम लोग. इफ़ यू डोंट थिंक दैट these things are not going on fine, so you can raise questions. So that comes under freedom of expression. Then to assemble peacefully without arms. You can assemble, you can protest against certain laws or conditions or new amendments. If you are suffering from it, or if you are having a problem with it, then you can protest against that in number. There is no limit for the number. Thousands and thousands of people can gather together, but without arms. It should be peaceful procession. You should not gather arms. Then to form association or unions, you can form association or union. You have heard about different kind of associations and unions. If you're working as a teacher, so there is a teacher union. So if the rights of the teacher are crushed by the management, they can form a union, and they can choose a representative who can go over there, go in front of the management, and he can discuss their things. Same as that, आपने सुना होगा मजदूर यूनियन के बारे में भी आपने सुना होगा. तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट, बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन है. तो दे वर्क फॉर रेलवे यूनियन है, दे वर्क फॉर देयर यूनियन एंड टू गेट बेटर सैलरी, टू बेटर options and opportunities. If they are suppressed by the management, so as the management is superior to them, so they want their rights. So you can form association or union. Then to move freely throughout the country, territory to India, throughout the territory to India. In the Indian territory, you can move anywhere. Either it is Nagaland, Arunachal Pradesh, or any other place, wherever you want to move. That is your choice. You can live over there. Nobody can stop you. Then to reside and settle in any part of the territory of India. You can go as well as you can reside. You can buy a home, buy a house in an Indian territory. किसी भी Indian territory में दीव में आप जाके मकान खरीद सकते हैं. Nobody can stop you. That is your choice. You have to go to certain procedures of the area. If you follow the procedures, you can decide over there. So that's our right to freedom. How to practice any profession. You can practice any profession. You want to become doctor, aeronautical engineer, you want to become a farmer, you want to become a child specialist, you want to become a dental care doctor, whatever you want to become. It is your choice, and you can study for that. You can apply for that. Nobody can stop you. Or to carry on an occupation. You can carry an occupation. You can sell milk also if you want to.
there is no problem. You can trade or business with any of the countries of the world which we have got business rights. So there is no problem in trading. You can trade, you can do business. These kind of things comes under right to freedom. So very simple. Almost 6 things are there which are primal. Then these rights are of utmost importance for the overall development of personality and expressions of the Indian citizens. These rights are very important. If we don't give the rights, if we are not given the rights of these kinds, we won't be free. Because all of these things actually reflect upon our living and livelihood or our standard in society. We want to raise our standard in society, we have to be expressive. We can't be suppressed. Whatever we are doing or whatever we are managing in these times, the Constitution is equally responsible for that. So for harmonious working of democracy, as we are the subjects of the democracy, so democracy is very important for us. And for the harmonious working, for the better working of the democracy, it is our responsibility for the healthy lifestyle also. Any individual cannot exercise these freedom autonomously or responsibly. First of all, nobody can exercise these type of freedoms autonomously or irresponsibly. Simple है, आपको आज़ादी है. If you are responsible, आप आज़ाद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You are independent enough. But आप चूज़ करते हैं कि मैं रॉन्ग साइड में ही गाड़ी चलाऊँगा, ये तो मेरा चॉइस है. ठीक है, जो पब्लिक गार्डन है वहाँ के पेड़ों को मैं काट दूँगा कि मुझे दंत मंजन की ज़रूरत है, तो मैं नीम का एक पेड़ काट के ले जाऊँगा और उसकी लकड़ी, कि मैं तो किसी आदमी को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, पर मैं किसी पेड़ को काट के लेके चला जाता हूँ, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. तो ये हम इसको ऑटोनोमसली अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं और इरिस्पॉन्सिबली नहीं चला सकते हैं. ठीक है, मेरी गाड़ी है तो मैं फुटपाथ पे चलाऊँगा, मेरी इच्छा है. भले कोई सो नहीं रहा है फुटपाथ के ऊपर, बट मैं चलाऊँगा. ठीक है, रात को 2 बजे के ऊपर स्पीकर में फुल वॉल्यूम पे चलाऊँगा. मैं, मेरा म्यूज़िक है, मैंने ख़रीदा है, मुझे राइट है. ऐसा नहीं होता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल एंड लिमिट द राइट टू फ्रीडम if they go against the welfare, peace and security of the society. स्टेट अब कंट्रोल नहीं कर सकती है और लिमिट नहीं कर सकती राइट टू फ्रीडम को. स्टेट का उसमें कुछ इतना हाथ नहीं होता है. इफ़ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड दे कैन कंट्रोल, वो कंट्रोल कर सकती है राइट टू फ्रीडम को. अगर दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सोसाइटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, 3 चीज़ें अगर नुकसान में आ जाती हैं, तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के रूप, समाज में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, वेलफेयर नहीं कर रहे हो. अब पीपल, यू हैव सीन मैनी पीपल दोज हू शूट प्रैंक वीडियोज़, तो रात को गरीब सो रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी डाल के चले जाते हैं टू मेक अ प्रैंक वीडियोज़. इट इज़ नॉट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड पीस, शांति रखना, किसी को भी, किसी भी कम्युनिटी को अपमानित कर देना क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी आर सुपीरियर, ऐसा सोच के कर देना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. एंड द सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की सिक्योरिटी का ख्याल रखना. अपनी खुद की सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, हम जो सभी लोग, वी आर सोसाइटी, हम इस सोसाइटी में रहते हैं. भावनगर की जितनी पूरी पब्लिक है, जितने इंडिया के नागरिक है, वो सब एक सोसाइटी है. दस दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ बीन स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज. और ये भी बताया गया हमारे राइट्स को हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज का मीनिंग है हमारे राइट्स के साथ हम कैसा उसको कैसे यूसेज कर सकते हैं. एंड इंडियन सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर ओरली, वर्बली एंड थ्रू जेस्चर्स. अब तीनों चीज़ें हमारी काम में आ सकती है. एक तो ओरली, हम बोल के अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है, वर्बली कर सकते हैं काम करके, एंड अदर जेस्चर्स, और अलग तरीक़ों से भी. आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट अ साइन बोर्ड दैट वी आर नॉट विद यू. वो साइन बोर्ड आप लगा के, मुंह पे पट्टी बंधा के, कई लोग काली पट्टी लगा के क्रिकेट मैच खेलते हैं, आपने देखा होगा, बिकॉज दे आर अगेंस्ट, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. कहीं आप देखेंगे तो काला झंडा दिखाया, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है कि दे हैव शोन द ब्लैक फ्लैग्स टू द मिनिस्टर बिकॉज दे वर अगेंस्ट हिज एक्शंस. तो वो ये उनका तरीका है कहने का. उसके लिए उनको आज़ादी है, कोई मना नहीं कर सकता. उनको पीट नहीं सकते हैं, समझे, सिर्फ अपना एक्सप्रेशन आप बता सकते हैं. बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग these rights in unlimited and unrestrained manner.
अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रेड मैनर में कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए काले झंडे कर दिए, प्रोटेस्ट कर लिया, रोड रोक दी, रोड पे आके बैठ गए, चलो हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे पर हम रोड पे बैठे हैं, आपको गाड़ी चलानी तो हमारे ऊपर से चला दो। दिस इज़ रॉन्ग, यू आर रूइनिंग द कंट्रीज प्रॉपर्टी, क्योंकि जो नेशनल ट्रेजर है वो सबको उसको नुकसान पहुंचता है। सर्टन अननेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशन हैव बीन स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इसके ऊपर कंट्रोल और लिमिटेशन बनाई गई है। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब स्टेट क्या कर सकता है, कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ के थ्रू एंड ऑर्डर, जो पुलिस के थ्रू एंड ऑर्डर के थ्रू, मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा आपने सुना होगा कि जगन्नाथ यात्रा जब होगी उससे पहले वो सिक्योरिटी रीज़न से बहुत एरियाज़ को क्लोज इन कर देते कि कहीं से कोई पथराव न करते, कोई गलत बात न कहते, सोशल साइट्स के ऊपर भी कंट्रोल रहता है ताकि पहले से ही कुछ गड़बड़ी ना हो, इंटेग्रिटी आपस में जो एक दूसरे को जो प्रेम सद्भावना है उसको नुकसान ना पहुँचे। कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हेट मैसेजेस फैल रहे थे। एक बार मुझे याद है गुजरात के अंदर देयर वाज सम प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन, जो आंदोलन चल रहा था पटेल का फॉर ओबीसी राइट्स के लिए। एट दैट टाइम गुजरात गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया था फॉर 7 days। ये भी एक मेजर्स है, स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं। सर्टन नेसेसरी कंट्रोल लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड थ्रू कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। स्टेट ले सकता है सेफ्टी ऑफ द स्टेट फॉर एमिकेबल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। काय के लिए, एक तो हमारे एमिकेबल रिलेशंस होने चाहिए, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए फॉरेन नेशंस के साथ। पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, पब्लिक मैनेजमेंट सही होना चाहिए, पब्लिक पीस शांति। कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेफ्टी, कॉम्प्रोमाइज़ बढ़िया, हम लोग किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करके बैठे हैं तो, और सेफ्टी, मोरालिटी, हमारी मॉरल्स जो ऊपर होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन एंड प्रोवोकिंग वायलेंस फॉर क्राइम, ये सब उसके अंदर आ जाता है। क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है, सेफ्टी के अंदर। तो इंडिया के अंदर सेफ्टी ऑफ द स्टेट, सबसे पहले स्टेट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। स्टेट के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा, कोई बॉम्ब्स वगैरह प्लांट तो नहीं कर रहा। दूसरा, ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे फॉरेन नेशंस को नुकसान पहुँचे। एमिकेबल रिलेशन, कोई फॉरनर घूमने आया, हमने उसका बैग लूट लिया, यहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाया, उनको चिढ़ाया, पीटा गया, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, पब्लिक मैनेजमेंट, कोई भी प्रोसेशन निकालना है, कोई यात्रा वगैरह, पब्लिक पीस, शांति से काम होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ इन सेफ्टी, अगर कहीं मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं, दो अगर ग्रुप्स में फाइटिंग हुई है तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, शांति स्थापना। ऐसा नहीं कि दोनों को ही पीटो, दोनों को ही जेल में डाल दो, इससे कोई ऑप्शन नहीं निकलेगा। देन मोरालिटी, मोरालिटी मतलब अपने मॉरल ज़ाहिर रखना, चोरी चकारी, किसी के ऊपर गलत आरोप लगा देना, ये सब नहीं होगा। मोरालिटी, डिसिप्लिन, सभी जो जनता है वो डिसिप्लिन में चले, लेटर वगैरह कचरा वगैरह देखेंगे आप, यूनिफॉर्म वे में चलें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की बात ना माने या डिफेमेशन करें, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, और प्रोवोकिंग वायलेंस, और किसी का वायलेंस को भड़काना कि चलो हम उसे पीटने चलते, उसने ऐसा बोल दिया हमारे खिलाफ, तो ये सब वायलेंस फॉर क्राइम है। इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी, ये अदालत की कामकाज है, अथॉरिटी है। वेदर दीज आर लिमिटेशंस, दीज मैनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। अब दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो ध्यान रखती है कि ये जो लिमिटेशन लगाई गई है वो राइट है या रॉन्ग है। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज़ एंड ऑप्शंस पुट फॉर्थ फॉर पीपल वेलफेयर हैज़ नॉट बीन सेपरेटली मैंशनड। अब ये जो चीज़ है, पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज़ एंड ओपिनियंस पुट फॉर्थ फॉर पब्लिक वेलफेयर हैज़ नॉट बीन सेपरेटली मैंशनड, अब वो अलग तरीके से मैंशन नहीं किया जाता है। इट कैन बी इंक्लूडेड इन राइट टू एक्सप्रेशन, ये राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। सबसे अच्छी चीज़ जो 2009 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नई चीज़ अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट दैट वाज फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। मतलब प्राइमरी कहाँ तक है, पहले 1 to 5 तक थी, जो अब लेटर ऑन 1 to 8 तक हो चुकी है। तो फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, 1 रुपया भी कहीं लगेगा नहीं, सबको एजुकेट किया जाएगा। फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, अगर 6 से 14 साल के बीच में आप हैं, so you can take education. If the person is not convicted for a crime, अगर कोई आदमी क्राइम में कन्विक्ट नहीं है, then he cannot be
sentence or punishment or more punishment than one prescribed by the law. Cannot be given the punishment more than once. अगर कोई एक आदमी कन्विक्ट नहीं किया गया क्राइम के अंदर, उसको अगर साबित नहीं हुआ है तो उसको एक से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, और एक पनिशमेंट से ज़्यादा भी नहीं दी जाएगी। दो है तो वो दोनों एक साथ ही काटेगा। पनिशमेंट मोर देन वंस कैन नॉट बी गिवन द सेम कन्विक्टेड पर्सन। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर लॉ। कोई भी इंसान किसी भी हालत में उसकी जान नहीं ली जा सकती किसी भी फॉर्मेट में। संविधान ऐसी कोई अनुमति नहीं देता, उसकी जान के ऊपर कुछ नहीं है जब तक कि एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर लॉ। लॉ उसको साबित नहीं कर देता, कानून जब तक साबित नहीं करता। उसके अलावा फांसी की सज़ा कौन देता है? कानून, अदालत देती है। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ फॉर सच अरेस्ट। किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता ये बिना बताए कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने की पूरी प्रॉपर जानकारी, उनका वारंट वगैरह सब उनको दिखाना पड़ता है। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। और अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो भी उसको अपने खुद को बचाव करने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है। वो कोर्ट में अपनी बात कर सकता है, अगर वकील खुद भी कर सकता है या किसी वकील को भी रख सकता है। और हिज और हर चॉइस, अपनी चॉइस के किसी वकील को रख सकता है। एज अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट थ्रू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और एक बार किसी आदमी को अरेस्ट किया जाए किसी भी क्राइम के अंदर तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये दैट इज़ अ लॉ, वो ज़रूरी है। ऐसे नहीं उसको जेल में 10 दिन सड़ा दिया फिर बाद में गए, पॉसिबल नहीं है। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। किसी को भी परमिशन के बिना कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, इसलिए पुलिस को 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। और अगर उसने बात नहीं मानी और हार्डकोर क्रिमिनल है और बात नहीं सुन रहा है तो उसको पुलिस कुछ टाइम मांगती है कि हम इससे पूछताछ करेंगे, तब वो हमको बताएगा। तो 10 दिन में बता देगा, 2 दिन में बता देगा, 3 दिन में बता देगा, तो उतने दिन की कस्टडी गवर्नमेंट देती है, सॉरी कोर्ट देता है। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अफोर्सेड मैटर। अब कोई कहीं पर किसी चीज़ का प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन के अंदर सब कुछ आ गया। जैसे गुजरात के अंदर लिकर शराब की बंदी है तो वो उसके एक्ट के अंदर वहाँ का जो कानून लागू पड़ रहा है वो उसके ऊपर लागू पड़ेगा। जैसे बहुत जगह इंटर स्टेट में आप जाएँ, राजस्थान में नहीं है, एमपी में नहीं है, महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं पर गुजरात में है, तो वो प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर में वहाँ पे अलग तरीके के काम किए जाएंगे। प्रोहिबिशन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे किसी जानवर को मारने के ऊपर प्रतिबंध हो सकता है तो आप जानवर को नहीं मार सकते हैं। कोई पेड़ को काटने के ऊपर भी प्रतिबंध है, मोर को तो हमारा नेशनल एनिमल में उसे मार ही नहीं सकते आप। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आती। Then preventive detention. If the state anticipates any criminal deed or activity from any person, then as a precautionary measure, the person can be detained by the state under an preventive detention act. कुछ चीज़ों के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, किसी इंसान को पहले से ही डिटेंशन किया जाएगा। बहुत सारे क्राइम कर लिए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कोई भी बड़ी रैली हो रही है या कोई बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो उससे पहले उन गूंज को पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे पहले से ही जेल के अंदर थोड़े दिन के लिए बंद कर सकते हैं, डिटेन किया जा सकता है, या फिर घर में ही नज़रबंद किया जा सकता है बाय द स्टेट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट। इसका मतलब एक्ट कन्विक्ट को पनिश नहीं करना है, बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो उनको रोकने के लिए फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी against state, society or any individual. Under this act, a person can be detained not more than 3 months. उससे 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता। The detention or order can be cancelled based on the opinion of judges of Supreme Court or members of the advisory board. The state can decide the term of detention. अब स्टेट इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है, टर्म ऑफ डिटेंशन को। 3 चीज़ें डिसाइड की जा सकती है। जैसे डिटेंशन में किसी को पकड़ के रखा गया है, इन ऑर्डर इट कैन बी कैंसल्ड, उसको कैंसिल भी किया सकता है ऑन द बेस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन, और स्टेट ये डिसाइड कर सकता है कि टर्म ऑफ डिटेंशन कितने टाइम तक उस व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person. An exploitation-free society is established.
दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द राइट. अब सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का कि टू सी दैट एनी पर्सन डज नॉट सफ़र एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन. किसी का भी दूसरों के हाथों पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो. हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड हो. दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द राइट. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की. ऑब्जेक्टिव मेन वही है थ्रू दिस राइट. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को बेच देना. बहुत लोगों को आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना. ड्रजरी, किसी टाइप की धोखाधड़ी. स्लेवरी, लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव बना के रखना बच्चों को. एंड फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती मजदूरी कराना आर बैंड. द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. अगर ऐसा कोई करता है दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस है. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, औरतों और बच्चों का इलीगल ट्रेड किया जाता है. फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती. और इम्पोज स्लेवरी, ज़बरदस्ती उनसे स्लेवरी कराई जाती है. वर्क विदाउट पे, और बिना पे के काम किया जाता है. 2 वक्त की रोटी देते हैं और काम भी नहीं कराते. कहीं आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे गरीब जो बच्चे हैं उनको अंधा बना दिया जाता है. और अंधा या ऐसा कुछ पैर हाथ काट के उनको काम पे लगा देते हैं. काय के लिए? भीख मांगने के. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग. ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लॉ के अगेंस्ट चीज़ है. वर्क विदाउट द ओल्ड ड्रजरी सिस्टम. ड्रजरी का मतलब है एक प्रकार की स्लेवरी ही है. वो सिस्टम पुराना चलता है. हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेज. मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने तय किया उससे नीचे देना या फिर 1 रुपया भी नहीं देना, ये सब कानूनी अपराध है. फोर्स्ड और इम्पोज्ड लेबर इज़ अ पनिशेबल एक्ट. फोर्स करना या किसी को ज़बरदस्ती करवा के काम करवाना वो एक पनिशेबल एक्ट है. एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन. कोई छोटा बच्चा जो 14 साल से नीचे, उसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है. किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता. जबकि आप देखेंगे तो ऐसा होता है. पटाखे की जो फैक्ट्री है शिवकाशी की, उसके अंदर. फिर आप देखेंगे चौक बनाने की जो फैक्ट्रीज है वहाँ छोटे बच्चों को यूज़ किया. स्लेट में वहाँ यूज़ किया जाता है. दैट इज़ वेरी बैड. और माइनिंग ज़मीन के अंदर खुदाई गहरे काम है. और एनी डेंजरस प्रोफेशन, किसी भी डेंजरस प्रोफेशन में जहाँ पे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ बच्चों को लगा दिया. किसी गैराज के अंदर देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे, आपने देखा ही होगा अपनी नज़र से. ठीक है. होटल के अंदर भी अलाउड नहीं है. और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट. सबसे बड़ी बात, 14 साल से नीचे के बच्चे को हाउस होल्ड सर्वेंट पे नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई करना ज़रूरी है. और 6 to 14 पहले ही राइट टू एजुकेशन कंप्लीशन कर दिया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन उसे मिलनी चाहिए. अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस. अगर चाइल्ड लेबर के खिलाफ जाओगे तो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर पनिशेबल ऑफेंसेस हैं. मैंडेटरी सर्विस कैन बी sought from any person for the purpose of public welfare of the state. Military services in any fields irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration. अब मैंडेटरी सर्विसेज हैं कुछ ऐसी जो कंपलसरी हैं. कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन, उस इंसान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें. फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे हैं. ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विसेज, जैसे स्टेट मिलिट्री सर्विस में ऑफ एनी फील्ड्स, किसी भी रीजन का, किसी भी फील्ड का आदमी मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है. किसी भी जेंडर का, कास्ट का, क्लास का, विद और विदाउट रिम्यूनरेशन. अगर चाहे तो अपने हिसाब से वो मैंडेटरी सर्विस कर सकता है. ठीक है. So for today this is enough, and the next lecture we are going to move to the right to freedom of religion. So thank you for now, and we'll meet in the next lecture. Good day, study hard.